Hey, this is Twinkle Tower. Today we are going to do BSc first year Zoology, paper first and unit 1, section A. And this is one shot of biosystematics and taxonomy. In this we are going to do general principle of taxonomy, concept of protozoa and metazoa, taxonomy and basis of classification, and detailed classification of known chordata and chordata. So let's begin. So paper first, general principles of taxonomy. So what is taxonomy? The branch of science concerned with identification, classification and nomenclature is known as taxonomy. Taxonomy is a Greek word. Taxis means arrangement and nomos means laws. Taxonomy name was given by A.P. de Condorcet. Father of taxonomy is Carolus Linnaeus. What is systematics? Systematics is the study of diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationships. जो systematics name है वो लिया गया है Greek word systema से. Here, taxonomy plus phylogeny is equal to systematics. Systematics name given by Carolus Linnaeus. जो systematics name है वो भी Carolus Linnaeus ने दिया है. Now species, a group of living organism consisting of similar individuals, मतलब एक group है individuals का capable of interbreeding, जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, interbreed कर सकते हैं और they can exchange cases. Species जो है वो एक smallest and basic unit है classification की. It is a ecological unit. Species is also genetic unit. Species जो है वो एक genetic unit है. Species name और जो species concept है that was given by John Ray. तो दो species concept है, एक है typological और एक दूसरा है biological species concept. बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो एक मॉडर्न स्पीसीज कॉन्सेप्ट है और this is ancient. This concept was given by Aristotle and Plato. According to this concept, species are group of individuals that are morphologically similar and clearly different from individuals of other groups. मतलब आपको बस यही याद रखना है कि जो typological species concept है उसमें जो individuals है वो morphologically similar है. A group of organisms consuming of a common morphological plant. Now इसकी limitations क्या है? इसमें है sexual dimorphism और immature stages and reproduction isolation क्या है? Absent है. अब जो biological species concept है वो दिया था Ernest Mayr ने. Ernest Mayr and then also known as it was given by Ernest Mayr. And according to Mayer, all such organisms who can interbreed among themselves and produce fertile offspring, मतलब जो organisms है वो interbreed कर सकते हैं और fertile offspring produce कर सकते हैं to themselves by breeding are the member of same species. तो ये member क्या होंगे? Same species के member होंगे. Now key characters क्या है? ऐसे characters जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन के. जब हम एनिमल्स जो है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो भी करेक्टर्स इम्पोर्टेंट है उनको हम की करेक्टर्स बोलते हैं. फर्स्ट था सिलम, तो ये एक टाइप की है कैविटी. देन वी हैव सिमेट्री, नोटोकोड, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ जर्म लेयर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा. Now what is classification? The method of arrangement of organisms into groups. मतलब क्या होगा? Method of arrangement of organisms into groups. जो organisms है उनको हम group में classify करेंगे और on the basis of किसके basis पे? Anatomical मतलब उनकी internal structure के basis पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनके फंक्शंस के बेसिस पे, साइटोलॉजिकल मतलब साइटोलॉजी का मतलब हमें पता है, साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल होता है. तो सेल के बेसिस पे और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को. अब टेक्सोन क्या है? टेक्सोन एक यूनिट है
रैंक कैटेगरी हो सकती है, ये फाइलस सब फाइलम हो सकता है, क्लास हो सकती है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, डेजिग्नेटिंग एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अ पर्टिकुलर ग्रुप इन अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, KPCOFGS। के से हो जाएगा किंगडम, एंड देन P से फाइलम, and then C class, O is order, F is family, G is genus and S is species। स्पीसीज जो है वो सबसे बड़ी छोटी यूनिट है, और जो किंगडम है वो सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे हाईएस्ट है। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो टाइप की क्लासिफिकेशन होंगे, एक तो आर्टिफिशियल होगा और एक नेचुरल होगा। So let's see what is artificial classification. The classification based on only one or two morphological character। जो artificial होगा वो किस पे बेस्ड होगा? वन और टू morphological characters पे बेस्ड होगा। बट जो नेचुरल है वो बहुत सारे morphological characters पे बेस्ड होगा, और जो आर्टिफिशियल है वो नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स पे बेस्ड है। बट जो नेचुरल है वो इसका अपोजिट है, वो इवोल्यूशनरी फीचर्स पे बेस्ड है। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है कैरोलस लीनियस का, वो बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। अब डीमेरिट्स क्या है? ओनली फ्यू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, मतलब थोड़े ही कैरेक्टर जो वो कंसिडर किए गए हैं। ये स्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। प्रोवाइड ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होगी इसमें, और जो अगर नया हम कोई वर्क करेंगे तो वो इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। सो डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर स्पीसीज, अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पीसी फाइंड करनी है तो वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट है फाइंड करना। नॉट रिलेटेड टू फाइनोजेनेटिकली, रिलेटेड भी नहीं है फाइनोजेटिकली। ओके, देन नेचुरल क्लासिफिकेशन, द ordering of organisms into groups on the basis of evolutionary relationship, मतलब ये evolutionary relationship बेस्ड होंगे, और बहुत सारे इसमें करेक्ट morphological characters होंगे। Then example, there are two examples. First is classification of Bentham and Hooker and classification of Gaspard Davin। Now merits क्या होंगे इसके? ये phylogenetic system है, इसमें न्यू वर्क ऐड कर सकते हैं, न्यू वर्क कैन बी एडेड हियर, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, मतलब लिमिटेड नहीं है। मैनी कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं, और इट इंडिकेट द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ये नेचुरल रिलेशनशिप जो है वो इंडिकेट करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। नाउ व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर को हम बोल सकते हैं नेमिंग। किस टाइप से हम जो एनिमल्स को नेम देते हैं ताकि जो यूनिवर्स है वो उनको एक ही नाम से जान पाए, या जो वर्ड है वो एक ही नाम से उनको जान पाए, तो इसलिए हम नेमिंग करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है? इज अ system of universal naming of organism। So binomial nomenclature, international code of nomenclature। binomial nomenclature firstly given by Gaspard Bavin ने दिया था अपनी बुक पाइनेक्स बुक में। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ही फादर है सिस्टमैटिक्स और जो टैक्सोनॉमी है उसके भी। सो फर्स्ट इज आईसीजीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जेड से आप पता लगा लोगे कि ये जू से रिलेटेड है। अगर जू से रिलेटेड है तो जू में क्या होंगे? ओनली एनिमल ही होंगे, और इससे आप याद रख सकते हो कि जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो है ए से स्टार्ट होगा, एनिमल है तो एरिस्टोटल। नाउ वर्क ऑफ आईसीजेडन एनिमल नेमिंग होगा। अब जो आईसीबीएन है दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन वर्क क्या है इसका? प्लांट नेमिंग है। बॉटनी का मतलब हो गया प्लांट, और जो फादर है बॉटनी के वो है थियोफ्रेटस। दिस इज बेसिक नॉलेज दैट यू शुड नो। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कलेक्ट करता है कंप्लीट डाटा ऑफ एनिमल और प्लांट। अब बुक कौन सी थी? कैरोलस लीनियस की। इन्होंने दो बुक लिखी, एक थी स्पीसीज प्लेंटिरम जिसमें प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है, और एक है सिस्टेमा नेचर जिसमें एनिमल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। नाउ रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो हम नेमिंग करेंगे उसके रूल्स क्या होंगे?
सो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा, साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू रैंक और वर्ड। जो साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें दो क्या होंगे, रैंक या फिर दो वर्ड होंगे। पहला जो वर्ड है वो जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। इसका नाम है मैंगो का साइंटिफिक नेम। नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, दूसरा जो है वो स्मॉल है, और तीसरा जो है वो क्या होगा कि जब भी हम साइंटिफिक नेम को हाथों से लिखे तो फिर क्या हमें उसे अंडरलाइन करना है, वो भी सेपरेटली, जीनस और स्पीसीज को। ये है जीनस और जो इंडिका है वो है स्पीसीज। ये दो वर्ड से मिलकर साइंटिफिक नेम बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाना टिग्रीना हम देखें, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, इसमें ये जीनस हो गया, स्पीसीज, इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज, या तो लेटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में हम इसे लिखेंगे। व्हेन राइटिंग स्पेसिफिक बाय हैंड अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली। व्हाइल टाइपिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर द साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक। जब टाइप करेंगे हम साइंटिफिक नेम को तब हम उसे लिखेंगे इटैलिक में। The name given by scientists whose name written in the first of species are in ordinary language. Then remaining is not valid for plants but is valid for naming of animals. ये एनिमल्स के लिए वैलिड है, जैसे रेट का हो गया रेटस रेटस, और कोबरा का नाजा नाजा साइंटिफिक नेम है। द साइंटिफिक नेम मस्ट बी बिटवीन 3 और 12 कैरेक्टर्स। मतलब ना ही तो ज्यादा छोटा होना चाहिए साइंटिफिक नेम और ना ही ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए। इट शुड बी इन बिटवीन 3 to 12 कैरेक्टर्स। साइंटिस्ट प्रेजेंट अ रॉन्ग नेम देन दिस नेम शुड बी रिटन इन बॉक्स और ब्रैकेट। अगर साइंटिस्ट ने रॉन्ग नेम लिखा है तो उसका नाम जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जिन्होंने इसको करेक्ट किया उसका नाम विदाउट ब्रैकेट लिखा जाएगा। So to be continued for the part second of this video.